নমস্কাৰ পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই নৱ গগৈ। ৰাহুল গান্ধীয়ে হিন্দু ধৰ্মৰ বিৰোধিতা কৰা নাই। ৰাহুল গান্ধীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে যে হিন্দু ধৰ্মত হিংসাৰ স্থান নাই। আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ সমৰ্থনত এনেদৰে এগৰাকী হিন্দু নেতা বা শংকৰাচাৰ্য স্বামী আৰু শংকৰাচাৰ্য স্বামীয়ে এতিয়া ৰাহুল গান্ধীক সমৰ্থন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সামাজিক মাধ্যমত ৰাহুল গান্ধীৰ বক্তব্যৰ আধা কাটি এতিয়া প্ৰচাৰ কৰা হৈছে আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বক্তব্য ভুল প্ৰচাৰিত কৰা হৈছে বুলি দাবী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যিসকলে এনে কাম কৰিছে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে শাস্তি লোৱা উচিত, শাস্তি দিয়া উচিত বুলি এতিয়া দাবী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে শংকৰাচাৰ্য স্বামী। আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। ৰাহুল গান্ধীৰ সমৰ্থনত এগৰাকী হিন্দু নেতা, ৰাহুল গান্ধীৰ সমৰ্থনত শংকৰাচাৰ্য স্বামী। আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'তো হিন্দু ধৰ্মৰ বিৰোধিতা কৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'তো হিন্দু ধৰ্মৰ বিৰোধিতা কৰা নাই। আৰু আমি ৰাহুল গান্ধীৰ সমগ্ৰ ভাষণ শুনিছোঁ। ৰাহুল গান্ধীয়ে কি কৈছিল সেয়া আমি শুনিছোঁ। আৰু তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যে হিন্দু ধৰ্মত হিংসাৰ কোনো স্থান নাই। আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ আধা বক্তব্য বিয়পোৱাটো এটা অপৰাধ বুলি উল্লেখ কৰিছে এতিয়া শংকৰাচাৰ্য স্বামীয়ে। আৰু যিয়ে এনে কাম কৰিছে তেওঁক শাস্তি দিয়া উচিত বুলি এতিয়া দাবী কৰিছে শংকৰাচাৰ্য স্বামীয়ে। আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ সমৰ্থন কৰিলে শংকৰাচাৰ্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বৰা নন্দই। ৰাহুল গান্ধীৰ সমৰ্থনত এইগৰাকী শংকৰাচাৰ্য স্বামী পুনৰবাৰ কৰিছোঁ। ৰাহুল গান্ধীয়ে সদনৰ মজিয়াত কৈছিল যে উদাত্ত কণ্ঠৰে কৈছিল যিসকল লোকে হিংসাক প্ৰশ্ৰয় দিয়ে সেইসকল লোক কেতিয়াও হিন্দু হ'বই নোৱাৰে। আৰু হিন্দুত কেতিয়াও হিংসা নাই, হিন্দুত কেৱল শান্তি সম্প্ৰীতি আছে বুলি এনেদৰে এতিয়া মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ এই মন্তব্যৰ পাছতে এতিয়া এগৰাকী হিন্দু নেতা বা স্বামী শংকৰাচাৰ্য স্বামীয়ে কৈছে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'তো হিন্দু ধৰ্মৰ বিৰোধিতা কৰা নাই। আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে হিন্দুক লৈ কোনো ধৰণৰ অপমানসূচক মন্তব্য কৰা নাই। আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে যে হিন্দু ধৰ্মত হিংসাৰ কোনো স্থান নাই। আৰু সঁচাকৈ হিন্দু ধৰ্মত কোনো হিংসাৰ স্থান নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে এতিয়া শংকৰাচাৰ্য স্বামীয়ে। ৰাহুল গান্ধীক কেনেদৰে সমৰ্থন কৰিছে শংকৰাচাৰ্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বৰা নন্দই। আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ যি আধা বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমত কাটি বিয়পোৱা হৈছে বা প্ৰচাৰ কৰা হৈছে সেয়া এক অপৰাধ। আৰু যিয়ে এনে কাম কৰিছে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে শাস্তি দিয়া উচিত বুলি এতিয়া দাবী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে শংকৰাচাৰ্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বৰা নন্দই। এই মুহূৰ্তত শংকৰাচাৰ্য স্বামীগৰাকীৰ মন্তব্য আমাৰ হাতত আছে। ৰাহুল গান্ধীৰ সন্দৰ্ভত, ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য বা বক্তব্যৰ সন্দৰ্ভত স্বামীগৰাকীয়ে কি কৈছিল সেই মন্তব্য আমি আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিম। पूरा प्रवचन जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है।
उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही